Today we are discussing the Universal Declaration of Human Rights. Now, what are Universal Declaration of Human Rights? So, I will share the screen with you guys so that you can see it. So, this is Universal Declaration of Human Rights, which we are discussing today. If you have any question, you can switch on the mic and ask, because it will not be possible for me to check the chat when I'm presenting this, है ना? तो the whole of human rights अगर हम बात करें तो human rights के जो सारे के सारे issues हैं या सारे के सारे laws हैं, सारे के सारे norms हैं, those are basically the source of those rights are basically the Universal Declaration of Human Rights. इसको हम short form में UDHR कहते हैं, and there are 30 articles in Universal Declaration of Human Rights. We will start with the preamble. नाउ प्रीएम्बल जो है ये बेसिकली ये बताता है कि ड्यूरिंग व्हेन ऑल दीज मेंबर स्टेट्स, यानी कि जितने भी देश थे आफ्टर 1945 एंड द वर्ल्ड वॉर, जब दे सिट बैक एंड साइन द ट्रीटी, है ना, तो यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे भी साइन हुआ था. एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी बहुत सारी चीजें जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पिकअप की है ना. These are certain things which may not be known to a lot of students, especially those people who are preparing for say civil services. Sometimes say कि the constitution of India is being borrowed from a lot of other countries, लेकिन सिर्फ वो countries नहीं है, वो universal declaration of human rights भी है, and we are a signatory of that. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, यू कैन सी दी स्लाइड, यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन द इंटरनेट, देयर इज नथिंग मच अबाउट इट, बट आई विल से दैट इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग the human dignity. हम जो the thing which we target is human dignity. We want to respect each and every individual, be it from different caste, be it from different religion, be it from different sex, be it from different say gender and orientations, be it from different colors of the skin and so on. तो बहुत सारे तरीके से जो है human beings को divide किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है. तो गिवन दैट उनको किस तरीके के यूनिवर्सल राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए या कौन से ऐसे कॉमन राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनके बारे में यूडीएचआर बात करता है. दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हम इस पे एक दो लेक्चर्स और भी लेंगे और आपको जो है और क्लैरिफिकेशन देंगे, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो द सोर्स, एंड द सोर्स इज यूडीएचआर एंड दे हैव 30 आर्टिकल्स इन इट. तो वी लेट अस डिस्कस दोस आर्टिकल्स. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, जिसमें कि ये भी बोलते हैं कि therefore the General Assembly proclaims these Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to end that every individual and every organ of society keeping this declaration constantly in mind. In fact, मैं आपको एक basic चीज बताता हूँ. Even if a country is a signatory of Universal Declaration of Human Rights या member of a United Nation, they are not bound to follow each and everything. However, they should constantly pursue these goals and these directives in their own country so that they can provide better governance and respect the individuality as well as the dignity of an individual. तो ह्यूमन बीइंग के बेसिक राइट्स होने चाहिए ये, है ना. और हमने अपने देश में भी, जैसे मैंने बताया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने बहुत सारे ये राइट्स को पिक किया है. आप जैसे जैसे मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा तो यू विल हैव एन आइडिया. तो एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 30 आर्टिकल्स. We may not be able to cover today all the articles, but I will try my best to cover it in 2 lectures, and you will see that many of these articles are already present in our constitution, and those are precisely provided also in the fundamental rights section of our constitution, that is part 3 of the Indian constitution or the Constitution of India. So let us start with the articles.
Now, this is the first article. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in the spirit of brotherhood. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, है ना. तो एवरीबडी इज बॉर्न फ्री. दैट मीन्स कि अगर स्लेवरी या किसी को किसी भी तरीके से आप फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट गोज अगेंस्ट दिस आर्टिकल. Moreover, they are also endowed with reason and conscience. है ना. Reason and conscience are two things which differentiates an individual or a human being from other beings, है ना. Whether it is animals or whether it is any kind of thing, insects or plants, है ना, वो उनमें भी जान होती है. लेकिन human beings के लिए कहा जाता है that since they are endowed with reason and conscience, therefore they should be provided with some kind of basic rights, है ना. वो basic rights provide करने की बात करता है. And the spirit of brotherhood should be something which we should all celebrate or enjoy. तो एक basic है, फर्स्ट आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल है. एंड इट बेसिकली draws the platform or develops the platform on which we can develop our rights. Now this is Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration. अगर आप इस declaration को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइप के राइट्स के बारे में बात की गई है. और all the individuals are having the entitlement for enjoying these rights. ठीक है. और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए, like on the basis of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or other social origins, property, birth और other status. तो किसी भी बेसिस पे जो है उनमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करना है. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs. कभी कभार ये भी होता है कि आप इस कंट्री से हैं तो आपको ये राइट नहीं मिल सकता, या आप यहाँ से हैं तो आपको जो है ये चीज नहीं मिल सकती. ऐसा नहीं होना चाहिए. Whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. कभी कभार होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी. People are stateless. No distinction shall be made on the basis of political jurisdiction. चलिए, तो ये हमने बात की कि you should not be distinguished because of something, है ना. तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 2 बोलता है. चलिए, let us go to the next article. Everyone has the right to life, liberty and security of person. ये जो है ये हमारे देश में भी आर्टिकल आपको मिलेगा. That right to life, liberty और security है, unless there is a law which prohibits it. जैसे कि ये वाला जो राइट है, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, है ना. तो बहुत सारे देशों में डेथ पेनल्टी है, बहुत सारे देशों ने एबॉलिश भी कर दिया. हम इसके बारे में ह्यूमन राइट्स में काफी डिस्कस भी करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग डेथ पेनल्टी. तो कहा जाता है कि राइट टू लाइफ जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक राइट होता है. सो नोबडी कैन आर्बिट्ररीली किल अ पर्सन और नो स्टेट कैन इवन आर्बिट्ररीली किल अ पर्सन. लेकिन हाँ, लॉज हो सकते हैं और उसके बेसिस पे लाइफ ली जाती है कभी कभार. सिमिलरली जो लिबर्टी है या सिक्योरिटी है वो भी कभी कभार जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो उसके पीछे रीजंस होते हैं. और जैसे आई डिस्कस्ड इनिशियली दैट वी आर नॉट ट्राइंग विद दिस कोर्स टू बिकम ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, राइट, या टू सी थिंग्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू. हम ह्यूमन राइट्स डिस्कस करेंगे तो इसमें हम बोथ सब्जेक्ट और स्टेट दोनों के ही प्रॉब्लम्स और दोनों के ही चैलेंजेस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट वी हैव ए मोर होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन हैविंग अ वेरी parochial point of view regarding these rights. So this is basically what we call as Article 3, that is right to life, liberty and security of person. Article 4 कहता है, no one shall be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms. Now this is another very important article. आपको पता होगा कि दुनिया में एक जमाने में बहुत ज्यादा स्लेवरी हुआ करती थी, है ना. स्लेवरी और स्लेव ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब उसको जो है प्रोहिबिट कर दिया है. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ अदर इंटरनेशनल कोवेनेंट्स एंड लॉज व्हिच प्रोहिबिट स्लेवरी ऑफ एनी टाइप. और बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्लेवरीज जो हैं वो कंप्लीटली खत्म कर दी गई हैं. लेकिन अभी भी जो है देश में, हमारे देश में और दुनिया में देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्लेवरीज विच आर फाउंड.
तो ये जो है दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इट आई विल से इज अगेंस्ट आर्टिकल 4। तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस जो हैं काम करते हैं सो दैट स्लेवरी एंड सर्विट्यूड कैन बी कंप्लीटली अबॉलिश्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आर्टिकल 5 कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये एक ऐसा आर्टिकल है या एक ऐसा लॉ है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको हम कहेंगे कि वायलेट होता है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया डेथ पेनल्टी इज नॉट something which is there in many countries. Many countries have abolished death penalty. जैसे इंडिया, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या इन सब कंट्रीज में आपको डेथ पेनल्टी अभी भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे देश हैं स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जहाँ पे कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी। पीपल कैन बी पेनलाइज्ड, पीपल कैन बी पुट बिहाइंड बार्स, बट दे विल नेवर बी अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी, है ना। तो उनको कभी भी जो है मारा नहीं जाता या नोबडी किल्स देम। तो बट ये तो हो गई डेथ पेनल्टी की बात। लेकिन जो क्रूएल, टॉर्चर या इनह्यूमन जिसे मुझे कहना चाहिए ट्रीटमेंट है, ये लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी की एक बेसिक टेक्निक है ना, कि एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, say whether it is army or any kind of defense services or say it is police or any kind of law enforcing authority, वो torture यूज करती है ना, so that they can elicit information। उनको information निकालनी होती है बहुत सारा, और उसके कारण से वो टॉर्चर करते हैं। लेकिन टॉर्चर इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 5। क्यों होता है, क्यों करती है, क्या होता है इसके पीछे रीजन, व्हाट इज द साइकी ऑफ अ person who is torturing and so on, we will be discussing in this course. Then article 6, everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि क्योंकि आप उस देश से हैं, क्योंकि आप उस रिलीजन से हैं, या क्योंकि आप उस कास्ट से हैं, या उस रीजन से हैं, या उस तरीके के सेक्सुअल ओरिएंटेशन से हैं, तो फिर आपको जो है हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते, या हम आपको जो है लॉ एंड गवर्नेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है ये आर्टिकल 6 बात करती है। इसी तरीके से ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑल आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन वायलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन एंड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन। तो एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ इज समथिंग विच इज द रूल ऑफ द लॉ, है ना। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, बट फिर भी कुछ जगहों पे इसके अगेंस्ट में भी लॉज हैं या इसको फॉलो नहीं करते हैं। एंड ह्यूमन राइट्स और द यूडीएचआर सेज दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज एवरी ह्यूमन बीइंग irrespective of whatever his or her orientation is, must be treated equal before the law। तो ये आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स। तो ये बेसिकली जो है बात करता है कि जैसे आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसी तरीके से आपको जस्टिस या लॉ डिलीवर भी कर देना चाहिए, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ दैट कंट्री, है ना। यूजुअली नेशनल ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की जाती है, क्योंकि कुछ लॉज जो हैं वो तो इंटरनेशनल कोर्ट या लॉज के अंडर में आते हैं, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ देम कम्स इन द कंट्रीज जुरिस्डिक्शन। अब कंट्री की क्योंकि सोवरेनिटी होती है, इफ यू अंडरस्टैंड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। तो सोवरेनिटी होती है किसी भी देश की, तो उस देश की क्योंकि एक सोवरेनिटी होती है, इसीलिए जो है उसको माना जाता है या उसको मानना पड़ता है, और आपको जो है लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना चाहिए। तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन जो लॉज प्रोनाउंस होंगे वो एज पर दी टेरिटरी होंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें बहुत सारी जगहों पे जो है देयर आर डिफिकल्टीज इन इंटरप्रिटेशन। एक तरफ हम यूनिवर्सल कहते हैं, फिर कभी कभार वो रीजनल भी हो जाता है एंड सो ऑन। तो हम इन चीजों को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बट इन ऑल अगर आप समझे और इसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें, द इंटेंशन इज टू प्रोवाइड पीपल विथ लॉट्स ऑफ फ्रीडम एंड नोबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम विथ लॉ। दैट इज द होल आइडिया। हाँ, क्रिमिनल्स हैं,
या कोई से रिपीट ऑफेंडर है तो उसके लिए बात अलग है। बट ऐसे नहीं कि आप इनोसेंट थे या आपको पता नहीं था या आप क्योंकि एक दूसरी जगह पे फंस गए हैं तो इसके कारण से आपको लॉस या राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बातें होती हैं। बट अगेन जैसे आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा डिस्कोर्स होता है, थोड़ा सा जो है इधर उधर टॉपिक्स जाते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट एज वेल। तो इसी तरीके से मैंने कहा आपको कि वी कैन नॉट ऑलवेज सी थिंग्स फ्रॉम वन लेंस, है ना, वी नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ लेंसेज, है ना। हमको इस एंगल से भी देखना है, उस एंगल से भी देखना है कि क्यों, जैसे ये जो सारे राइट्स हैं, दीज राइट्स आर समथिंग विच शुड बी प्रोवाइडेड टू सब्जेक्ट्स या सिटीजन्स या पीपल। सिमिलरली गवर्नमेंट या स्टेट के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको भी जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत डिफिकल्टी से देखना पड़ता है या उसको बहुत क्रिटिकली देखना पड़ता है, क्योंकि उनको भी लॉ एंड गवर्नेंस दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना होता है। तो कभी कभार जो है इनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे इन कोर्स में, है ना। बट फर्स्ट लेट अस ट्राई टू कवर द आर्टिकल सो दैट वी हैव अ बेसिक आइडिया कि ये ह्यूमन राइट्स बेसिकली बात करता किन किन चीज़ों के बारे में। चलिए, आर्टिकल 9, नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। तो ये भी आप समझते हैं कि किसी को ऐसे ही आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो या डिटेन नहीं कर सकते हो या किसी को एक्साइल पे नहीं भेज सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी जो है ये भी ह्यूमन राइट्स कहता है। तो ये चीजों को भी जो है समझना जरूरी है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा जस्ट लेट मी चेक विद द थिंग। ओके, चलिए, तो these are this was article 9 that no one shall be subject to arbitrary arrest, detention और exile। इसको छोड़कर एक दो चीजें और भी होती हैं, अलग अलग देशों में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने कोर्स का जब बेसिक चीज बताना है, मतलब कि कोर्स कंटेंट डिस्कस करने की बात की थी, तो उसमें हमने बात किया था, एक कॉन्सेप्ट होता है समथिंग कॉल्ड डिसअपियरेंसेस। तो डिसअपियरेंस भी जो है इधर आता है और भी कुछ आर्टिकल्स में आएगा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस होते हैं, दैट मींस जिसको हम बोलते हैं एनकाउंटर, और कुछ कुछ कभी कभार जो है कस्टोडियल डेथ्स भी होते हैं। तो ये सब चीजें भी जो है ये ह्यूमन राइट्स को कॉन्ट्रावीन करती है, तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। आर्टिकल 10, एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वालिटी टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग। जैसे ये फेयर एंड पब्लिक हियरिंग के बारे में यहाँ पे इसलिए बात की गई है, ओके, सो फेयर एंड पब्लिक हियरिंग के बारे में बात कर रहा था। बहुत सारे देश जो हैं उसमें फेयर एंड पब्लिक हियरिंग नहीं हो पाती है। फेयर एंड पब्लिक हियरिंग नहीं हो पाती है, इसका मतलब क्या होता है कि the justice or the court proceedings are carried out behind doors। तो वहाँ पे ओपन स्क्रूटिनी नहीं हो पाती है और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनके ऊपर ये वाले चार्जेस बहुत लगते हैं। तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, वहाँ पे डिसअपियरेंस की भी प्रॉब्लम होती है। तो हम इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 10 जो है इसको ही रोकने की बात करता है। आर्टिकल 11 जो है इसी को कंटिन्यू करता है, दैट एवरीवन चार्ज विद पीनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जैसे टॉर्चर में भी जो है ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, दैट पीपल आर अज्यूम्ड गिल्टी एंड दे हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस। जबकि अगर आप कभी भी लॉ बुक देखें तो लॉ बुक में हमेशा ये कहा जाता है दैट पीपल आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस दे आर प्रूवन गिल्टी। तो ये जो है ये मानना पड़ेगा और इस चीज को जो है फॉलो करना चाहिए। दैट इज द thing which they talk about. Similarly, no one shall be held guilty of any penal offense on account of any or act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it is committed. देखिए, ये भी चीज समझना जरूरी है। इसको एक्सपोज डी फैक्टो लॉज भी कहते हैं कभी कभार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इसको फॉलो करते हैं। जैसे कि सपोज कोई लॉ है वो आज आता है और आपने उसके अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी जो है कल परसों या नरसों करी थी, है ना, तो आपको जो है चार्ज नहीं किया जा सकता। लाइक एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज की सपोज हमारी यूनिवर्सिटी में अभी बॉयज के हॉस्टल्स के लिए कोई लॉ नहीं है कि बॉयज जो है अपने हॉस्टल में 8 बजे तक घुस जाएंगे या 8 बजे तक एंटर कर जाएंगे या 11 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, है ना। ऐसा कोई लॉ नहीं है, लोग निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। गर्ल्स के लिए लॉज हैं पर बॉयज के लिए नहीं। लेकिन सपोज कल एक कोई लॉ आता है
जो कि ये कहता है कि 11 बजे के बाद बॉयज अपने हॉस्टल के बाहर नहीं घूम सकते। सपोज ये लॉ जो है ये 31 जनवरी 2021 को आया, लेकिन क्योंकि आप लोग जब 2020 में यहाँ पे थे और 11 बजे के बाद बाहर घूमते थे फिरते थे, तो उसके लिए आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, है ना। तो ये चीज एक बहुत ही बेसिक और रैशनल चीज होती है समझने के लिए। लेकिन होता क्या है, मतलब हालांकि आपको सुनने में ये बहुत ही मजाक टाइप का लग रहा होगा या बहुत ही हिलेरियस लग रहा होगा, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स गो ऑन टू प्रोनाउंस सर्टेन काइंड ऑफ लॉ समटाइम्स बैक डेट में, ठीक है, बैक डेट में वो लॉ बना देते हैं, या कभी कभार एक लॉ बना के किसी को जो है मुजरिम बना देते हैं, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस होते हैं, मतलब क्रिमिनल केसेस तो बहुत कम, ये मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, दीज आर वेरी पॉलिटिकल बाय नेचर। तो पॉलिटिकली ऐसे मोटिवेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि किसी ने कोई काम किया होगा, उसको जो है उसको चार्ज करने के लिए एक लॉ बैकडेट में बना के या आज ही बना के, लेकिन उसको जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं या उसको उसके अगेंस्ट में कोई जो है जजमेंट पास कर देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी या नहीं होनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच आर्टिकल 11 टॉक्स अबाउट। Article 12, no one shall be subject to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of law against such interference or attacks. आज in the age of internet, you know how much our privacy is compromised, right? हमारे phone datas, हमारे क्या बोलते हैं phone tapping होती है, हमारे जो है emails को read कर लेते हैं लोग, वहाँ से datas निकाल लेते हैं। तो ये चीजें, और मतलब ये सिर्फ लोग और उससे मीम बनाना या उसको स्कैंडलाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन द गवर्नमेंट्स, इवन द स्टेट्स कैरी ऑन अ लॉट ऑफ एक्ट्स लाइक दैट, और वो जो है सीडीआर के थ्रू या और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू जो है इस तरीके की इंफॉर्मेशंस निकाल के लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड की बात अगेन कर रहा हूँ, उनके राइट्स को वायलेट करती है। और आपको पता होगा या समझ में आता होगा दैट प्रिवेसी इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। हमारे देश में भी जो है प्रिवेसी को एक ह्यूमन राइट्स का दर्जा दिया गया है और ये एक फंडामेंटल राइट भी है। तो ये चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, या किसी को भी जो है उसके फैमिली होम टाइम को जो है परव्यू में नहीं ला जा सकता, या उसको जो है ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक राइट है जो कि आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। तो ये आपने देखा होगा हमारे देश में भी एक फंडामेंटल राइट है कि हम जो है अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। अगर दूसरे देश में भी आना जाना है तो भी हम आ जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं और आपके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट एमोल्यूमेंट्स होने चाहिए और साथ में आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो वो चीज है, लेकिन ये नहीं कि आप जा नहीं सकते हो या यहाँ से आ नहीं सकते हो एंड सो ऑन, इस तरीके के नहीं होते। लेकिन ये भी जो है बहुत बार बहुत सारी जगहों पे जो है ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, जहाँ पे कि एक सर्टेन टाइप के लोगों को वीजा नहीं इशू किया जाता या उनको जाने आने से रोका जाता है एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रैवल मूवमेंट जो है फ्रीली होना चाहिए, फ्री मूवमेंट जो है अलाउ करना चाहिए लोगों का। दिस इज द राइट विच इज प्रोवाइडेड। Article 14, everyone has the right to seek and enjoy in their country's asylum from persecution. देखिए कभी कभार क्या होता है कि देश में जो है इस तरीके के मतभेद हो जाते हैं, कभी कभार सिविल वॉर हो जाता है, कभी कभार रिलीजियस, या हमारे देश में हम लोग उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, कम्युनल वायलेंस हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में या ऐसे केसेस में जो है हमें असाइलम मिलना चाहिए या परसिक्यूट हमें नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन। इस तरीके के बहुत सारे राइट्स हैं। दिस राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जेन्युइनली अराइजिंग फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स। ये भी चीज क्लियर की गई है कि पॉलिटिकली अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें परसिक्यूट किया जा जो है आपको असाइलम मिल सकता है। लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस है या किसी भी नॉन पॉलिटिकल केस में आप फंसे हैं तो उस केस में ये राइट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं जब रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स और इंटरनली डिस्प्लेस्ड और इस तरीके के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा लेटर इन दिस कोर्स, सो वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। आर्टिकल 15 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू नेशनलिटी। देखिए नेशनलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बीइंग
स्टेटलेस या नेशनलेस जो है, इट्स लाइक ए टैबू, है ना। आपको पता नहीं होगा, जैसे एक मूवी भी बनी है, हम ऐसे, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी मूवीज है, मैंने एक लिस्ट भी आप लोग के साथ शेयर करी थी। जब ये स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने लिया है इस कोर्स को, तो हम जो है वो लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, और उसमें और भी बहुत सारी मूवीज ऐड हो सकती हैं। तो एक मूवी है टर्मिनल, तो टर्मिनल मूवी में भी जो है ये डिस्कशन है, या ये उस चीज को डिस्प्ले किया गया था। हालांकि दे हैव मेड इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, पर इट इज बेस्ड ऑन एन ओरिजिनल स्टोरी, जिसमें कि एक पर्सन जो है यूएस में, क्योंकि उसके देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएस के खत्म हो गए थे, तो ही वाज कंप्लीटली केप्ट इन द टर्मिनल, ही वाज नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड दिस एंड दैट, इवन इफ ही वाज हैविंग द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे बाय द टाइम ही वाज ट्रैवलिंग, तो ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो नेशनैलिटी का नहीं होना जो है एक टैबू बन जाता है, एंड यू आर कंसिडर्ड स्टेटलेस, देन यू आर आल्सो कंसिडर्ड एज एन इलीगल इमिग्रेंट, एंड उसके बाद आपके अगेंस्ट में बहुत सारे लॉस लगते हैं, जिसके कारण से इट इज कंसिडर्ड एज अ पीनल ऑफेंस। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए राइट टू नेशनैलिटी सबके पास होनी चाहिए। एवरी पर्सन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सम कंट्री और द अदर। नो वन शैल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। देखिए ये चीज भी है कि आपको आपके देश को जो है ये नहीं करना चाहिए कि आपकी नेशनैलिटी छीन ले, या आपको ये राइट नहीं दे कि आप जो है नेशनैलिटी चेंज नहीं कर सकते, है ना। हमारे देश में ये दोनों राइट्स हैं अवेलेबल। आप जो है कभी भी चाहें तो अपनी नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं, और आप अगर हमारे देश के सिटीजन हैं तो आपको जो है नेशनैलिटी या रिकग्निशन मिलेगा। हालांकि उस पर अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है CAS को लेके, या और भी बहुत सारे इस तरीके चीज़ों को लेके, बट इट इज़ ट्राइंग टू मॉडरेट अ लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। बेसिक रीजन वो है, बट जो भी है हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले करते हैं, जिसके कारण से लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फेस करना पड़ता है। आर्टिकल 16 जो है ये बेसिकली आपके फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है। मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज। फुल एज का मतलब है कि जो भी एज जिस भी देश में एक्सेप्टेड है, जैसे हमारे देश में 18 और 21 साल फॉर फीमेल्स एंड मेल्स है, कुछ देशों में दोनों 18 साल ही है, कुछ देशों में और भी कम है, 14 साल भी है, तो जिनके पास राइट टू मैरी होता है ना। तो लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। They are also entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution, है ना। तो ये सब बेसिकली मैरिज राइट्स हैं, और राइट टू मैरी इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, है ना। आप अपनी पसंद से लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर वो देश के लॉज भी होते हैं कि वहाँ पे मोनोगैमी प्रिविलेंट है कि पॉलीगैमी प्रिविलेंट है, एंड सो ऑन। फिर मैरिज शैल बी एंटर्ड इनटू ओनली विथ फ्री एंड फुल कंसेंट ऑफ इंटेंडिंग स्पाउसेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द पीपल हु आर गेटिंग मैरिड शुड हैव द इंटेंशन आल्सो टू मैरी ईच अदर, है ना। ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती किसी के साथ शादी करा दी जाए, है ना। तो ये चीज भी जो है एक ह्यूमन राइट्स के अंडर में आता है। फिर द फैमिली इज अ नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड द स्टेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फैमिली कोई फॉर्म होती है तो स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। अगर वो बोलते हैं कि वो मैरिड हैं और उन्होंने अगर कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी सोशल सैंक्टिटी होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो स्टेट उनको फैमिली रिकॉग्नाइज नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता, उसको करना पड़ेगा। हालांकि इस पे भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जितने भी राइट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर जगह पे जो है यू विल फाइंड कॉन्टेस्टिंग ओपिनियंस, तो हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 17 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। हमारे देश में एक जमाने में फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 31 में, अब उसको जो है एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, लेकिन राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर नो वन शैल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। कभी कभार क्या होता है कि सरकार जब्त कर लेती है जमीन जायदाद ये वो, तो आर्बिट्ररीली नहीं कर सकती, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के चलते कर सकती है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस नहीं होने चाहिए, है ना। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो इट इज अ बेसिक राइट ऑफ योर्स, एंड उसको जो है ग्रैब नहीं कर सकता कोई। तो दैट इज द आइडिया।
फिर आर्टिकल 18 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस एंड रिलीजन। तो ये बेसिकली जो है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन एज वेल एज जिसे मुझे कहना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना, कन्वर्जन्स भी अलाउड होते हैं। मतलब कि अगर आप एक रिलीजन में बॉर्न हुए हैं तो आप दूसरे रिलीजन को भी, मतलब दूसरे रिलीजन में चेंज भी हो सकते हैं, आप उसको फैला सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है, ठीक है ना। बट ये सारी की सारी चीजें होनी कैसी चाहिए, ये चीज भी समझिएगा। हमारे देश में भी लॉ है और यूनाइटेड नेशंस भी यही कहता है कि ये फोर्स से नहीं होना चाहिए, है ना, फोर्सफुल कन्वर्जन्स नहीं होने चाहिए, या फिर एल्योरमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रलोभन, हाँ, किसी को जो है आप कोई लोभ दिखा के कि हम आपको इतने जमीन दे देंगे, कार दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, आप हमारे रिलीजन में ट्रांसफर हो जाइए या कन्वर्ट हो जाइए, तो ऐसा नहीं, या आपको मार देंगे, काट देंगे, है ना, डरा धमका के, ये चीजें अलाउड नहीं। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन, बिलीव फ्रीडम ईदर अलोन और इन कम्युनिटी विद अदर्स एंड इन पब्लिक प्राइवेट। तो ये आप समझ सकते हो। इसी तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो भी बना सकते हो आप, वहां पे आप जाके अपना धर्म निभा सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ये वाला जो है ये भी हमारे देश में फंडामेंटल राइट है कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस एंड टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। हाउएवर, ये आर्टिकल जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है ये, है ना, इस चीज को आप समझिएगा। आपका ओपिनियन, आपका एक्सप्रेशन अगर दूसरे के अगेंस्ट में है या दूसरे को जो है क्या कहना चाहिए, अब्यूज करता है, अब्यूजिव है, हाँ, तो वो एक्सप्रेशंस या वो ओपिनियंस को जो है सरकार कर्टेल करती है। और आप अगर सरकार के भी अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें बोले और वो सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाती है, तो वो भी जो है रोका जा सकता है। लेकिन बेसिकली जो है एक राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हम सेंसरशिप में बात करेंगे, जिसमें कि आप देखोगे कि इवन एजुकेशन एंड मीडिया इन इटसेल्फ आर वेरी वेरी बायस्ड बाय नेचर, है ना। तो हम जिसको एजुकेशन कहते हैं वो भी एक जिसे कहना चाहिए कि अप्रूव्ड एजुकेशन है, नॉट वॉट एवर वी वॉन्ट टू लर्न। बहुत सारे बुक्स बैन किए जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रोका जाता है या आने नहीं दिया जाता, है ना, और सो ऑन। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश में तो बहुत कम है, चाइना या और भी बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ कोरिया में फॉर दैट मैटर बहुत ज्यादा है, जिसमें कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस और एजुकेशन और मीडिया के चीजों में जो है इतनी फ्रीडम नहीं होती। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, ये कहता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। ये आपने देखा होगा, ये एग्जैक्टली यही वाली लाइंस जो हैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी मिल जाएंगी। नो वन मे बी कंपल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन, है ना। आप जैसे कि एसोसिएशन या पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, इसी तरीके से किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप जो है उसको किसी एसोसिएशन का मेंबर बना के छोड़ो कि भैया तुमने हमारे कॉलेज में स्टूडेंट बन गए हो तो अब जो है छात्र संघ ज्वाइन करना जरूरी है, या आप फैकल्टी हैं तो आपको जो है एम्प्लॉयज यूनियन फॉलो करना या ज्वाइन करना जरूरी है। आप कंपल नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप किसी को रोक भी नहीं सकते हो कि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं तो मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहे। तो बात क्या है कि ह्यूमन बीइंग के पास फ्रीडम होनी चाहिए दैट कि अगर वो चाहे तो ज्वाइन करे और चाहे तो नहीं ज्वाइन करे। इसी तरीके से पीसफुल असेंबली हमारे देश में भी कहते हैं, विदाउट आर्म्स साथ में लिखते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो फार्मर्स का या और भी बहुत सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, तो पीसफुल असेंबली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो वायलेंट होती है तब सरकार या जिसको हम कहते हैं कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, यूजुअली द पुलिस फोर्सेस, आपको रोक सकती है। अच्छा, इस चीज को भी समझिएगा कि राइट टू पीसफुल असेंबली आपने क्या किया कि रास्ते के बीच में जाके सारे लोग धरने पे बैठ गए एकदम विदाउट आर्म्स। आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो, कोई स्लोगन भी नहीं कर रहे हो, लेकिन चक्का जाम हो गया उसके चक्कर में, ट्रैफिक को रोक दिया आपने, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो सरकार आपको उसके लिए भी जो है मना कर सकती है, मतलब मना कर सकती है कि मना करेगी, है ना। तो ये चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है दैट पीसफुल असेंबली या एसोसिएशन या विदाउट आर्म्स या इस तरीके के जो आर्टिकल्स होते हैं, इनको थोड़ा क्लियरली समझना भी जरूरी है कि आप डिसरप्ट नहीं कर सकते। द होल आइडिया इज कि आप अगर शांति से एक, जैसे आजकल देखा होगा आपने कि अलग अलग जगह दे दी है दिल्ली में या और भी बहुत सारी जगहों में, जहां पे कि आप अपने
जो भी स्टेट के अगेंस्ट में या पॉलिटिकल या सोशल जो भी आपके मांगे हैं आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। तो वो, पर ऐसा नहीं कि रास्ते के बीच में बैठ गए, है ना, कि पूरे न्यू दिल्ली स्टेशन के आसपास जाके जो है बैठ के जो है अपने धरने पे बैठ गए, तो ना कोई आ पा रहा है ट्रेन को पकड़ने के लिए, और जो ट्रेन से निकले हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें समझने वाली बातें हैं, बट फिर भी कभी कभार बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो राइट है तो हम तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास राइट है, लेकिन और आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट इनएलिएनेबल या एब्सोल्यूट बाय नेचर, दो दे आर यूनिवर्सल बाय नेचर। तो इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। आज जल्दी से जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम आर्टिकल्स को खत्म कर ही देते हैं। Article 21. Everyone has the right to take part in government and its country directly or through freely chosen representatives. आप किसी को रोक नहीं सकते हो कि भाई आप आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो भी रूल्स एंड लॉस हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। भाई 25 साल का होना है या 30 साल का होना है, देश का सिटीजन होना है, आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, जो भी लॉस जहां पर भी बनते हैं वो लॉस के अगर आप पूरा करते हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू दिस रिलीजन और दैट रिलीजन, दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, आप इलेक्शंस या पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप वोट भी दे सकते हैं, है ना। तो वोटिंग राइट्स भी जो है वो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का ही मतलब होता है। एवरीवन हैज द राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस इन हिज कंट्री, है ना। तो ये चीज भी है कि आप पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये कहा जाता है कि लोग जो चाहते हैं ना वो सरकार को फॉलो करना चाहिए। अब लोग क्या चाहते हैं डेमोक्रेसी में, जो मेजोरिटी चाहती है। मेजोरिटी क्या चाहती है, तो जो चाहती है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत बार होता है, एंड अगेन द प्रॉब्लम अराइजेस। तो जैसे मैंने बोला कि राइट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। दिस विल शैल बी एक्सप्रेस्ड इन पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस, है ना। तो ये जो विल है ये कैसे पता चलेगा लोगों का, तो एक पीरियोडिक और जेन्युइन इलेक्शंस भी होने चाहिए, है ना, बेस्ड ऑन इक्वल सफरेज, है ना। तो इक्वल सफरेज का मतलब होता है कि मेन एंड वीमेन शुड हैव द राइट टू वोट। तो हमारे देश में जैसे 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, कुछ देशों में 6 साल में होते हैं, कुछ देशों में 4 साल में होते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके की है, और सीक्रेट वोट होना चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली ये डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है कि देश जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे देश जो है डेमोक्रेसीज नहीं है, ये आपको पता होंगे। एवरीवन एज अ मेंबर, सर। हाँ सर, अभी आर्टिकल 21 का जो सेकंड पॉइंट है सर, वो रिजर्वेशन उसके अगेंस्ट नहीं है? नहीं, हमारे हाँ, वो स्पेशल राइट्स में आता है। विमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो है स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड करने की बात की जाती है। आएंगे रिजर्वेशन क्यों एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। चलें आगे चलें, पहले आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं। Everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state, है ना, of the economic, social and cultural rights indispensable for the dignity and free development of his personality। ये जो राइट है ना, यहाँ से जैसे ह्यूमन राइट्स बहुत सारे टाइप के राइट्स होते हैं, अभी हम एक लेक्चर और करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। मैं आपको स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी का एक मटेरियल भी शेयर करूंगा, so you will get more idea about it। जैसे कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ग्रुप्स एंड माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, कुछ मॉरल राइट्स होते हैं, कुछ और भी राइट्स होते हैं। इसी तरीके से एक राइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सोशल राइट्स। अभी जो सोशल राइट्स हैं इसके लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और एक अपलिफ्टमेंट करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा, जैसे आपको पता होगा कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया है अपनी सिटीजन को कि उनको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी डेवलपिंग कंट्रीज को आई। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, तो दे कैन सस्टेन एंड सपोर्ट देयर people for a longer duration of time and that too in a very better fashion। हम जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं वो उस तरीके से सोशल राइट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं जिस तरीके से दूसरे देशों में होते हैं। हमारे देशों में उतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं है जितनी कि दूसरे देशों में है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ऐसे हमारे देशों से कम भी बहुत लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी होती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि इन राइट्स को पूरी तरीके से, जैसे हमने बात भी
जब मैंने कोर्स कंटेंट बताया था तो मैंने पूछा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि वेदर सोशल राइट्स आर जेन्युइन ह्यूमन राइट्स, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने बोला भी था उस दिन कि आंसर तो है कि सोशल राइट्स आर जेन्युइन ह्यूमन राइट्स, लेकिन उसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो जो है जिस तरीके का स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, अभी हम कुछ आर्टिकल्स में देखेंगे भी कि लीजर एक्टिविटीज या और भी बहुत सारी चीजें जो है राइट्स होनी चाहिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ के कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, एवरीवन हैज द राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क एंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कितना ही मिलता है, या राइट टू वर्क है, लेकिन राइट टू वर्क किस में है? मनरेगा में है, जिसमें कि 100 दिन का काम आपको मिल सकता है, लेकिन 365 दिन का काम नहीं मिल सकता, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे देशों में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके अपना वो करते हैं तो आपको एक उचित जॉब जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा, एंड इट विल बी 365 डेज अ ईयर। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 100 डेज का मिल सकता है मजदूरी के लिए या इन सब चीजों के लिए। तो आप समझ रहे हो कि उस तरीके का हमारे देश में या बहुत सारे देशों में, मोस्टली कंट्रीज में सोशल राइट्स नहीं है अभी भी। फिर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक जमाने में ऐसा होता था कि इक्वल पे नहीं मिलता था इक्वल वर्क के लिए, लेकिन अब जो है ज्यादातर जगहों पे कर दिया है, लेकिन फिर भी ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और शायद इसी कारण से अभी भी ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं कि आप यहाँ से हैं या वहाँ से हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारी मेराइन कंपनीज होती हैं जो, जैसे कि अगर आप किसी को जानते हो जो कि मर्चेंट नेवी में हो, तो मर्चेंट नेवी में या इस तरीके की कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारे देशों के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको जो सैलरीज मिलती है वो उनके देश के हिसाब से मिलती है, रादर देन इक्वल मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोई क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीसीसीआई ने जो है हमारे देश के नए बच्चों को, यानी कि जिन लोग अभी ऑस्ट्रेलिया का सीरीज या टूर जीत के आए हैं, तो उनको जो है कुछ दिया, है ना, व्हाटएवर, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपको पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम मेल्स और इंडियन क्रिकेट टीम फीमेल्स की जो बेसिक सैलरी है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही आप स्पोर्ट्स में बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशंस देखेंगे, आप जॉब्स में भी बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस देखेंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पर अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दूसरा परव्यू, अभी हम बेसिक मिनिमल राइट्स के बारे में बात करेंगे। पर समझने की बात क्या है कि डिस्क्रिमिनेशंस हैं, और इस चीज को भी समझिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन गलत नहीं है, बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को जो है क्वेश्चन किया जाता है। वी विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल। आप हमेशा याद रखना, अगर मैं सपोज बताना भूल जाऊं तो पूछ भी लेना कि आपने बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन गलत नहीं है, लेकिन बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्वेश्चनेबल होता है। तो वो चीज क्या है, इस चीज को हम बात करेंगे। जैसे आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये भी क्या होती हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर लेता हूं सो दैट वी फिनिश द आर्टिकल्स टुडे। तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। और आज तो मैं क्लास ऐसे ले रहा हूं जिसमें कि मैं खुद ही बोल रहा हूं। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू विल बी ऑल्सो गिवन एंड यू शुड बी टेकिंग द राइट टू डिस्कस एज वेल, ठीक है। अच्छा, everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity। तो ये जो वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है ना, ये अलग अलग देशों की डेफिनेशन अलग अलग है, और ट्रेड यूनियंस फॉर्म कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपकी। ये भी जो है हर देश में उतना अच्छा या वेल प्रोनाउंस्ड नहीं है। एवरीवन हैज द राइट टू rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay। ये एक distant dream है अभी भी ज्यादातर देशों में, है ना। हमारे देश में रेस्ट और लीजर को इतना टारगेट नहीं करते हैं या मिलता नहीं है। वर्किंग आवर्स को जो है बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चाइना वगैरह में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और पीरियोडिक हॉलीडेज या पे, जैसे आपको या हमको समझ में नहीं आता ना, राइट टू वेकेशन इज अ बेसिक फंडामेंटल या ह्यूमन राइट। हमारे देश में या बहुत सारी जगहों पे वेकेशंस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आज 3 या 4 दिन का वर्किंग वीक कर दिया है उन लोगों ने, 5 से उसको कम कर दिया है, किसी ने 4 कर दिया है, किसी ने 3 कर दिया, सो दैट पीपल वर्क
इन अ बेटर वे और वो थोड़ा सा रेस्ट और लीजर करे। उन्होंने वर्किंग आवर्स को कम किया है और उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर आपने 2 या 3 महीने तक छुट्टियां नहीं ली लगातार, तो आपको जो है मैंडेटरीली छुट्टी पे भेज देते हैं कि आप 5 दिन या 10 दिन की छुट्टी लेके जाओ, कहीं से घूम फिर के आओ, ऑल पेमेंट्स डन बाय द कंपनी। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है उन देशों में। हमारे देशों में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके पीछे रीजन भी है, नॉट ओनली दैट कि हम लोग गरीब हैं, तो हम अभी उस तरीके से लोगों को इतने राइट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारे लोग भी जो है वैसा काम नहीं करते जैसे वो करते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है ना, कि हम भी तो मतलब कि एज अ फैकल्टी मेंबर मैं कितना ही काम कर रहा हूँ, है ना, या एज ए पर्सन हु इज वर्किंग इन सम आईटी सेक्टर कितना ही काम कर रहा है, या हु इज वर्किंग इन सम गवर्नमेंट सेक्टर कितना ही काम कर रहा है, और काम करने से भी ज्यादा ये सोचता है कि किस तरीके से जो है काम नहीं करूँ, है ना। तो इसलिए जो है हम लोगों को उस तरीके के राइट्स या उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिल पाती है, जबकि इन देशों में इस तरीके का है। तो राइट टू इस तरीके की चीजों को हम सोशल राइट्स में लाते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन इज अ सोशल राइट एज वेल, हम बात भी कर रहे हैं इसके बारे में। पर पहले इसको बात कर लेते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, नेसेसरी सोशल सर्विसेज, या अगर कोई अनएम्प्लॉयड हो जाए, कभी सिक हो जाए, कोई डिसेबिलिटी डेवलप कर ले, या किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाए, ओल्ड एज हो जाए, तो उनको भी जो है एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसी तरीके से मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से हर्ष पूछ रहा था कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन या कोई भी इस तरीके की पॉलिसी जो है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ लोगों, जैसे महिलाओं को आजकल जो है या बच्चों को आजकल जो है बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, एंड चिल्ड्रन एंड विमेन राइट्स आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम उसको भी लास्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं अपने कोर्स में, और उनको बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिलते हैं। तो मेन कैन नॉट से कि यार विमेन को इतनी छुट्टियां देते हो आप, या ये करते हो, या आप उनके जैसे आजकल विमेन या फीमेल्स को जो है एग्जामिनेशन देने के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, तो उसके लिए मेन हल्ला नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए गए। मैं आऊंगा इन सब चीजों के बारे में कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन फिर बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चनेबल है कि नहीं है, ये देखना पड़ता है। इसी तरीके से बच्चों को हम बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चा एक सीट में बैठ के जा रहा है, लेकिन उसको जो है आधी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन हम पूरे पैसे दे के बैठे हुए हैं, तो ये भी आप एक प्रॉब्लम कह सकते हो। छुट्टियों के साथ है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन, केयर एंड दिस एंड दैट, पर वो फिर उनके स्पेशल राइट्स हैं, उनकी जरूरत भी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिमिलरली एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज समझना जरूरी है, और ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी टैबू था, कि चिल्ड्रन विदाउट और चिल्ड्रन हु आर बोर्न विदाउट अ वेडलॉक, है ना, जैसे कि पेरेंट्स मैरिड नहीं है लेकिन बच्चा है, तो हम उनको बहुत ही बुरी दृष्टि से देखते हैं, या उनके अगेंस्ट में बहुत मजाक उड़ाते हैं एंड ऑल। लेकिन एक तो पहली चीज ये कि बच्चे की तो उसमें कोई वही नहीं, रोल ही नहीं है, और दूसरा जो है इस चीज को जो है रोकने की या इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर किसी के पेरेंट्स अननोन है ना, चाहे वो वेडलॉक के अगेंस्ट ही हो, सपोज कोई अनाथ है फॉर दैट मैटर, है ना, तो ऐसे भी बच्चों को जो है बहुत प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए, और उनको जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक जमाने में स्कूल में आप एडमिशन ही ले सकते थे बगैर माँ बाप के नाम के, ठीक है ना, पर आजकल अलाउड है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि चेंज हुई हैं या करने की जरूरत थी, और भी होनी है। और अभी गिवन द पेस ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द पेस ऑफ पीपल, तो अभी और भी बहुत सारे सोशल फैब्रिक में चेंजेस आएंगे, और ये सारी चीजें जो है राइट्स होनी चाहिए या मिलनी चाहिए। ये एजुकेशन के बारे में राइट है, आर्टिकल 26 में इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट बना दिया है इसको, तो मोर और लेस हम इसको फॉलो करते हैं। इसी तरीके से एवरीवन हैज द राइट फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ एंड कम्युनिटी, ये भी आप सारी चीजें समझ सकते हो कि किसी को रोका नहीं जा सकता। साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, किसी भी तरीके की चीजें का जो है प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन अलाउड है, आपको मिलना चाहिए, आप करना चाहिए आपको। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच द राइट्स, है ना, तो ये भी एक चीज है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर होना चाहिए, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए जिसमें कि ये सारे राइट्स को हम फुली प्रोटेक्ट कर सकें या लोग उसको फॉलो कर सकें।
आर्टिकल 29 और 30 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच अलोन फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज पॉसिबल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, हम सिर्फ राइट्स बात करते हैं, ड्यूटीज को भी परफॉर्म करना जरूरी है। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट्स एंड फ्रीडम्स एवरीवन शैल बी सब्जेक्ट ओनली टू सच लिमिटेशंस एज आर डिटरमाइंड बाय लॉ सोनली ऑन द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ड्यू रिकग्निशन। तो ये भी एक चीज है। And these rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of United Nations. That means कि अगर इन राइट्स में और यूनाइटेड नेशन के किसी प्रिंसिपल या पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई झगड़ा हो जाए तो जो प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं वो ऊपर जाएंगे, है ना। इन राइट्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट नहीं है, इनको जो है रोका भी जा सकता है। लेकिन मैं इन सारी चीजों से भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आर्टिकल 30 में है, इस चीज को बताना चाहूंगा। Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state. मतलब कि कोई भी स्टेट बाध्य नहीं है, they are not forced to follow all these things. They may follow. These are directives, है ना। These are certain norms जिनको कि दिमाग में रख के, जहन में रख के लॉस को बनाना चाहिए। Group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. तो अल्टीमेटली पता है क्या, ह्यूमन राइट्स आर बेसिकली डायरेक्टिव्स। हमने उनमें से बहुत सारे राइट्स को जो है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जगह दी है, और इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स में भी जगह दी है, और बहुत सारी चीज़ों को लाते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे सोशल राइट्स जो हैं वो प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंट होंगी, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और ये धीरे धीरे जब फॉर्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हम ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में बहुत ऊपर भी आने लगेंगे, जितना कि अभी हम नहीं हैं। तो एक चीज हमेशा समझिएगा, इंटरनेशनल रूल्स और लॉज जो हैं वो डायरेक्टिव्स होते हैं। देश की सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता जिसको हम कहते हैं, ना, उसकी खुद की अथॉरिटी होती है। देश अपने हिसाब से अपने देश में, अपने टेरिटरी में, है ना, अपने तरीके से लॉज लगाता है। कुछ लॉज ऐसा हो सकते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर के अनुरूप ना हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कभी कभार टसल होता है, कभी कभार लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट द ट्रुथ इज कि एक्चुअली इसको इस तरीके से नहीं लेना होता है। और दूसरी चीज ये है कि ह्यूमन राइट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो वेस्टर्नाइज्ड प्रिंसिपल्स है, दूसरा वो होमोजीनियस सोसाइटीज को दिमाग में रख के बनाई गई है। हमारा देश जो है वो बहुत हीट्रोजीनियस बाय नेचर है, तो उसमें बहुत बार बहुत सारी चीजें जैसे कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से जो है कभी कभार हमारे रूल्स और हमारे लॉज जो हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं लग पाते हैं, या हम वैसे नहीं अप्लाई कर पाते हैं, और इसके कारण से जो है कभी कभार हम या हमारे देश में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन ज्यादा दिखाए जाते हैं। सो